क्या पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो पहले। यस सर, शेयर हो रही है सर। पहले जवाब दिया करो फिर सवाल किया करो। Okay, this question I did before proceeding on our break. The highest point, in this graph, in this interval is 8, 2. This is the absolute maximum, and the lowest point is occurring at -1. At -1, the value is -1. So this is the absolute minimum. अब देखिए थोड़ा सा it seems आप समझते हैं कि हमें कोई मुश्किल आ रही है. Look here, this question number 39. I attempt some difficult questions also ताकि आप ये परेशान ना हो कि जी सर ने तो आसान कर दिए and difficulty is left for us. Look, this is question number 39. The function is fx equal to 1 upon x plus log x. There is nothing, any difficulty you should face because the author is not giving very complicated functions. He is giving you simple functions that those can be plotted easily. So if you think there are two different functions, so make two different columns, one by x for one function and log x for the other function, and then in the end you just sum up these two values. Okay. The interval is from 0.5 to 4. So 0.5 से लीजिए फिर 1, 2, 3, 4. 0.5 के बाद next value आएगी 1. Okay. 2, 3, 4. Once the value is 0.5 for 1 over x, if you put 0.5 for x, it will become 2. If you put x as 1, 1 by 1 will remain 1. If you put x as 2, then 1 by 2 will become 0.5. 1 by 3 is 0.33. 1 by 4 will be 0.25. This is the table for 1 upon x. And now we find the table for log x. Once it is 0.5, to log 0.5, you have the calculators with you. Just put, and the natural log you will get directly. A button is there on the calculators available to you. There are two logs available there. One is for log and another is the natural log ln. So you have to take this natural log ln because the author is has given you this function. So log of 0.5 is coming to be minus 0.69. Log of 1 will be always 0. Log of 0.5, log of 2. Log of 2 is plus 0.69. Log of 3 is 1.1. And log of 4 is 1.39. So in the end, you have to just sum up these two values because the function is the addition of these two different functions. Add them 1.31. So 1 over x plus log x. So 1 plus 0 will be 1 and these two 1.19. Next to 1.43 and x equal to 4. The net answer is 1.67. Now you draw for these x values, these are the y values, the lowest bottom. So once we draw this graph, you see, better you use the graph papers. Spend some money, purchase a notebook, so that you could get the accurate answers and should be in a habit of drawing xy axis and then plotting these points. So at 0.5, the answer is 1.31. At 1, it is 1. Keep on drawing. At 1, 1, you see at when x is 1, y is 1. So this is the lowest point in this curve, note it down. So this is your absolute minimum. And keep on plotting all the other points and you see the highest point is 4, 1.64. 4 at x equal to 4, the absolute maximum value is 1.64. That's it. Kya kharabi hai? Is there any difficulty? So the only idea was that you are to separately calculate the values of these two functions and then add them up. So the technique is given to you so that if similar questions you get, you can follow.
Next is in the next slot, the author is asking you from question 41 to 44, find the absolute maximum and minimum values and say where they are assumed. वो कहाँ पे अकर कर रहे हैं, कौन सा मिनिमम है, कौन सा मैक्सिमम है. Well, this question number 41. Fx is x power 4 by 3 and the interval is given to you is -1 less than equal to x is less than equal to a. I told you that the absolute maximum or absolute minimum in some interval occurs either at the endpoints or at the critical points. And once I was defining the critical points, I told you the critical points occur where f dash x is 0, or remember this second part, this is must to be remembered, or where the function is undefined. Note it down. It's very important. आप इसको बड़ा इग्नोर कर जाएंगे. I am sure. और मैं पेपर में आपको ऐसा सवाल दूंगा जिसके अंदर फंक्शन अनडिफाइंड होगा किसी पॉइंट पर, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा पॉइंट है, and that will be a critical point. There will be some maximum. सर आप रिमूव कर दें, यहाँ पढ़ाई हो रही है उनकी समझ नहीं आती कैसे जंगी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर. Note down now. Now you just go for one-way traffic. ये बदतमीज लोग कभी भी इस दुनिया से खत्म नहीं हो सकते. शैतान का काम साथ साथ रहना. Okay, this sentence I have written is a very important sentence. Don't ignore it. Absolute maximum and minimum occur either at the endpoints or at critical points. For critical points, find f dash x and set it equal to 0. देखिए एक तरीका ये होता है. तो मैं इसका f dash x निकाला. Power has brought here as a coefficient, then function, then power -1. Use the power rule and then set it equal to 0. So answer is coming to be x as 0. So this is the critical point and the end point is -1 and a. So we have to put all these points in this function. तो आप निकालिए पहले f of -1 एंड पॉइंट को कैलकुलेट कीजिए. -1 की पावर आप रखेंगे तो ये माइनस ही आएगा. ठीक है, और 8 रखेंगे तो 8 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा. 2 पावर 4 मीन्स 16. ये बात समझ में आई? Listen again, gentlemen, listen again. I am putting 8 in place of x. F of 8. Put here 8. 8 power 4 by 3. Now 8 can be written as 2 power 3. Remember, 2 power 3 is 8. So 2 power 3. अब पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो 3 multiplied with 4 by 3. ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. So 2 power 4 will be left. And 2 power 4 becomes 16, remember. And when x is 0, of course, y will also be 0. F of 0 will be 0. The lowest point is -1, not 0, remember. -1 is smaller than 0. The absolute minimum is -1 at x equal to -1. ये x की value है. The absolute minimum is -1. ये value है absolute minimum, which is occurring at
when x is minus 1. And absolute maximum is 16, and it is occurring at x is equal to 8. Okay. So the absolute maximum and absolute minimum, they are occurring at the extreme intervals, interval ke jo points. It's not occurring anywhere at your critical point. Same exercise, question number 47 I'm taking. Determine all the critical points for each of the function. Critical point निकालिए आप सिर्फ. तो rewriting the function as fx, देखिए इसको हम दोबारा इस तरह से लिख रहे हैं. या तो आप प्रोडक्ट रूल लगा के कर लें, या फिर आप इस तरह से कर लें. तो मैंने इसको क्यूब के फॉर्मूले से इसको खोल दिया और फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. सिंगल सिंगल टर्म बन गई और हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया. दिस इज वन वे. अनदर इज दैट यू टेक द प्रोडक्ट रूल, क्योंकि डेरिवेटिव लेना है. चॉइस इज योर्स. ओके. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी. क्या बात है. Are you listening my voice, everybody? हेलो, आपकी आवाज तो नहीं आएगी ना, मुझे आनी भी नहीं चाहिए. So I was telling you a minus b whole cube का फॉर्मूला लगाइए आपने, 9th पे पढ़ा हुआ है आपने. And then multiply, then differentiate this function f dash x. 64x का आंसर आएगा only 64. 2 से ये मल्टीप्लाई आएगा, ये 96 x की पावर 1 हो जाएगा. 12 into 3 will be 36, x पावर कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी. This will become minus 4x. To find the critical point, set f dash x equal to 0. f dash x को हमने 0 रख दिया. सेम इक्वेशन. देखिए पूरी इक्वेशन फिर आप देख रहे हैं कि 4 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइडिंग बाय 4. आइदर साइड पे हमने 4 से डिवाइड किया. तो 16 minus 24 plus 9 and minus x cube. शफल कीजिए दूसरे टर्म्स को दूसरी साइड पर ले आए. After shuffling these terms on the left side, ये आपके क्यूबिक इक्वेशन बन गई. x cube minus 9x plus 24x plus 16 equal to 0. आपको अब इसके रूट्स चाहिए, यानी x की वैल्यूज चाहिए. That in your algebra course, algebra and trigonometry, you were taught one method that was known as the synthetic division method. तो आप सबसे पहले इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिखते हैं, और अगर कोई टर्म x की मिसिंग है तो उसकी जगह आप 0 लिखेंगे. एंड इफ देयर इज नो टर्म मिसिंग, देन यू विल जस्ट राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एवरी x. x की का कोएफिशिएंट 1 है, x square का, then next is minus 9, next is x 24, and the pure constant term is minus 8. अब हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं इसमें, सिंथेटिक डिवीजन मेथड. सो जस्ट ट्राइंग वन, assuming that this is a root, तो ये 1 लिखा आपने, और 1 को ऐसे आपने नीचे उतारना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 1 1 द 1, तो माइनस 9 प्लस 1, इसको प्लस करते हैं, माइनस 8. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 यहाँ आ गया. अब इनको ऐड करें, 24 माइनस 8 इज 16. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 16 को यहाँ लिख दें, तो माइनस 16 एंड प्लस 16. Once the answer is in the end coming to be 0, means x equal to 1 is a root of this equation. एक रूट आ गया, बाकी रिमेन. ठीक है ना. अब इसको आपने इक्वेशन बनाइए, रिड्यूस इक्वेशन. ये पहला वाला कांस्टेंट हो जाएगा, इसके साथ x लगेगा और इसके साथ x स्क्वायर लगेगा. तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0. आप देखिए ये होल स्क्वायर है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है. द टोटल फैक्टर्स आर x माइनस 1 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर. पहला फैक्टर जो ना 1 तो रूट था ना, तो x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर. ये पूरी इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज किया आपने तो आंसर बना आपका x माइनस 1 x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0.
तो either x minus 1 is 0, इसका मतलब x is 1, और x minus 4 is 0 means x is 4. X equal to 1 and 4, these are the critical points of that function. ये आपको फंक्शन दिया हुआ था ना, उसने कहा था determine all the critical points. So this was the fx. इसका डिफरेंशिएट किया आपने, f dash को 0 रखा, 0 रखने के बाद जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं किया, and then you got a cubic equation and you applied the synthetic division method and you found all the roots. तो x की वैल्यू जो आ गई ये आपका क्रिटिकल पॉइंट्स है. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51. x square plus 32 root x. Differentiate with respect to x, we get dy over dx. ये हो जाएगा 2x, ये पावर 1 by 2 है. ओके, तो 32 डिवाइडेड बाय, चलो हम मैंने इसको ब्रैकेट में डिफरेंशिएट किया, अंडर रूट x, इट्स डेरिवेटिव विल बिकम 1 upon 2 अंडर रूट x. या फिर पेपर में भी था ना, आपने अंडर रूट u को डिफरेंशिएट तो 1 over 2 अंडर रूट u लिखा था, याद होगा. ओके, देन सिंप्लीफाई, 2 से 32 कटा, 16 हो गया. तो 16 by root x की सेकंड फैक्टर अपना 2x एज इट इज. अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर यहाँ 1 है एंड हियर इज 1 by 2. तो 1 और 1 by 2 ऐड हो जाएगा तो 3 by 2 हो जाएगा. नोट इट डाउन केयरफुली. ऑलरेडी द पावर ऑफ x इज 1 हियर, and once you multiply and with under root x, bases are same, powers will be added, so 1 plus 1 by 2 will become 3 by 2. Minus 16 as it is because you are taking under root x as the root, sorry, LCM. Now we set the derivative f dash x to 0 या dy over dx to 0. 0 रख लें to find the critical points. जब हमने dy over dx to 0 का ये से क्रॉस हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसको सॉल्व कीजिए, 2x की पावर 3 by 2 minus 16 is 0. इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, x पावर 3 by 2 minus 8 is 0. इधर ले आए, 8 हो गया. 8 को मैंने कहा था ना कैसे लिखेंगे, 2 by 3. 8 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा. 8 may be written as 2 power 3. And in an equation, अच्छा अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो टेक पावर 2 by 3 बोथ साइड, इसका उल्टी पावर से मल्टीप्लाई करें, यानी इसके रेसिप्रोकल से. टेक इट्स 2 by 3 पावर, ताकि ये कट के 1 हो जाए. तो 2 by 3 इधर लिया तो इधर भी पावर 2 by 3 लेंगे और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ऊपर डाउन 2 पावर 4 बचे, 2 की पावर 2 बचेगा, द आंसर विल बिकम 4. तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 0. ये देखिए, अब ये 0 कहां से आया, इसको भी नोट कीजिए. आई हैव रिटन द जस्टिफिकेशन. सी दिस इज द डेरिवेटिव. ठीक है, as under root x is in the denominator, so x equal to 0 will make dy over dx undefined. जहां पे आपका dy over dx undefined होगा, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है. यहाँ आप देखो x को 0 रखोगे तो under root 0 will be 0 and the whole function divided by 0 will jump to infinity. तो अगर आपका डेरिवेटिव इंफिनिटी पे जा रहा है तो that point will also be a point, critical point. Hence x equal to 0 is also a critical point. So one point you have got by solving this equation, and another point with this justification, because this point is making my derivative as undefined. Undefined हो रहा है. So this is also a critical point. So remember, ये तरीका भी है, इस पॉइंट को छोड़ना नहीं है आपने कभी भी. X equal to 4 and x equal to 0 are the critical points. The author asked you to find all the critical points. अगली स्लॉट देखिए, हर स्लॉट से मैंने क्वेश्चन किया आपके लिए. In exercise 53 to 63, find the extreme values absolute
or local of the function over the natural domain and where they occur. कहाँ वो occur कर रहे हैं वो पॉइंट आपने निकालना है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स। ये फंक्शन है, उसने कहा द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमें पता होना चाहिए कि हम x की जो भी वैल्यू देंगे एक y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। हर x की एक वैल्यू के लिए देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y। अब माइनस से शुरू करें प्लस तक आपको आंसर मिलता रहेगा, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होगा। जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल हमेशा उसका डोमेन जो होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। चलिए अब इसका डेरिवेटिव लें, dy और dx क्या आएगा, 4x माइनस 8, सेटिंग द डेरिवेटिव इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 रखा हमने, सॉल्व किया, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x इक्वल टू 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, एक पॉइंट तो आपके पास ये आ। नाउ वी चूज, अब देखिए मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। इसके बाद आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड भी बताऊंगा, बट हियर राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो अब ये x इक्वल टू 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके दो नेबरिंग पॉइंट्स चूज कीजिए, वन बिफोर एंड वन आफ्टर दैट। तो बिफोर जो हो जाएगा 1.9 और आफ्टर दैट हो जाएगा 2.1। तो ये देखिए, वी नाउ चूज टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑफ x इक्वल टू 2, दैट इज x इक्वल टू 1.9 एंड x इक्वल टू 2.1। पहले 1.9 पुट कीजिए dy और dx में, आंसर आ रहा है माइनस में, और नेक्स्ट पॉइंट पुट कीजिए 2.1, यहाँ पे आंसर आ रहा है प्लस में। तो साइन चेंज हो रहे हैं ना, और माइनस से प्लस, माइनस का मतलब नीचे आ रहा था फिर प्लस हो गया ऊपर गया। ये देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, अगर dy dx नेगेटिव में आ रहा है तो the function is declining, and if it is plus तो the function is rising। तो पहले डिक्लाइन कर रहा है बाद में राइज कर रहा है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। as a function is negative before and positive after x equal to 2, so it is a minimum point, यानी x equal to 2 is a point of minimum। और फिर हम y मिनिमम कैसे निकालेंगे, देखिए जो गिवन फंक्शन है, ये वाला आपका जो गिवन इक्वेशन थी, इसमें जो आपने पॉइंट x का निकाला है वो यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू क्या निकाली, 2 निकाली। आपने बता दिया कि x मिनिमम है, तो देखो इससे पहले फंक्शन माइनस था और बाद में फंक्शन प्लस हो गया, ठीक है। ये मिनिमम पॉइंट नजर आ रहा है ना, देख लेंगे। तो y मिनिमम, इसका कोरिस्पॉन्डिंग y, दुनिया में अल्लाह ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, x निकाला है तो y भी निकाला है उसका। तो 2 की पावर 2 उससे मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, फिर माइनस 2 8 16 प्लस 9 क्या बचा, देखो ये 8 हो गया, माइनस 16 प्लस 9, द आंसर इज कमिंग टू बी 1। तो y minimum is 1 when x is 2, the value of y is 1। 2,1 is the minimum point, ठीक है, या पॉइंट ऑफ मिनिमा कह लें। आई बात समझ में, हाँ क्या ना, अब बोल नहीं सकते ना, कितनी अच्छी बात। ओके, ये वाला क्वेश्चन नंबर 57। जब ये हाफ खत्म होगा उसके बाद आप मुझसे पूछिएगा, मैं अगला, इसके बाद लास्ट हमारा रहता है क्वेश्चन। दोनों किया, y is equal to under root x square minus 1, under root means whole power is 1/2। just find its derivative, dy over dx will be power here as a coefficient, then you write the whole function x square minus 1, and then power minus 1, 1/2 minus 1 will be minus half, और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये फॉर्मूला जरा अच्छी तरह सीख लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी शायद लिखवाया हुआ है, अगर नहीं लिखवाया तो अब लिख लें। हम क्या करते हैं, लिखो पावर देन फंक्शन पावर माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ओके। ये फंक्शन आपका x स्क्वायर माइनस 1, इट्स डेरिवेटिव 2x, तो 2 विल बी कैंसल्ड, x ऊपर आ गया, पावर नेगेटिव है इसको नीचे ले जाइए, एंड 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और 1/2 मींस अंडर रूट। तो दिस इज योर डेरिवेटिव, कॉल इट रिलेशन नंबर 1। To find the critical points, set dy over dx equal to 0 in equation 1। इसमें आप 0 रख दिया dy over dx, हर दफा आपने यही करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 रखा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो x 0 आ गया, बट दिस पॉइंट इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो
क्यों नहीं है? ये पॉइंट कैसे पता चल रहा है कि इस फंक्शन की डोमेन में? देखिए आप अगर x को 0 रखेंगे, फर्स्ट कर लो, यहाँ पे मैं x को 0 रखता हूँ, तो अंडर रूट में -1 बचेगा, जो आयोटा हो जाता है, पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा। तो हमने सिर्फ रियल नंबर डिस्कस करने यहाँ पे, इमेजिनरी नंबर्स वी आर नॉट टू डिस्कस. So x equal to 0 is not in the domain of the function. So not a critical point. मैंने कहा था ना critical point डिफाइन करते हैं कि उसकी डोमेन में होना चाहिए वो, और जहां dy by dx 0 होगा वो x की वैल्यूज, या फिर जहां dy by dx अनडिफाइंड होगा वो x की वैल्यूज, those will be the critical points, but they should also be in the domain of that function. x इक्वल टू 0 यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ये इसकी डोमेन में नहीं है। अब दूसरी कहानी क्या है कि डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, ये चेक कीजिए, ठीक है। एट x इक्वल टू +-1, जब मैं 1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, या -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा, 1 - 1 फिर 0. The moment the denominator gets 0 means the function is jumping to infinity, undefined हो जाएगा. So at x equal to +-1, dy over dx is undefined. ठीक हो गया? So x equal to +-1 are other critical points. एक तो 0 निकाला था, लेकिन चूंकि वो डोमेन में नहीं है लिहाजा डिस्कार्ड कर दिया हमने इसको. And then we have got other pair of points +1 -1, क्योंकि 1 रखने से भी ये क्या हो रहा है? अनडिफाइंड, और -1 रखने से भी अनडिफाइंड. जब डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें, तो यानी जैसे आपने कंटिन्यूटी चेक की सेम, तो here the function is undefined at x equal to +1 -1, so these are also the critical points. उसे कैसे पता चल रहा है ये हाइपरबोला है? बहुत से लोग तो पढ़ के देख भी सकते हैं, लेकिन नहीं पता चलेगा. देखिए अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा? y² इक्वल टू x² -1, x² को इधर ले जाओ, y² - x² इक्वल टू 1. जरा ये देखो, ये लिखा है मैंने आपके लिए, माशाल्लाह. हाँ, स्क्वायर किया दोनों तरफ, अंडर रूट यहाँ से खत्म हुआ, ये y² हो गया, डन. और चले y² को मैं इधर लाया और 1 को उधर ले गया, x² - y² और 1 उधर जाके 1 हो गया, ठीक है. दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद, जिसमें a² और b² दोनों की वैल्यू 1 1 हो. देखिए x के नीचे भी 1 है और y² के नीचे भी 1 है, दोनों अगर इक्वल वैल्यूज हो ना तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है. a², तो ये मैंने बना दिया इसकी फिगर रफली. ओके, ये आपके पास स्क्वायर में आएगा ये डब्बा, क्योंकि a और b दोनों बराबर है, स्क्वायर बनेगा. अब यहाँ से आप एसिम्प्टोट्स बना देंगे डॉटेड लाइन में, और ये आपके फोसाई आ गए 1 0 और -1 0. चूंकि x² पॉजिटिव है तो ट्रांसफर्स एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे आएगा. अभी ताज़ा पढ़ा है ना ये, तो थोड़ी दिनों में तो सब भूल जाएगा आपको. अभी तो पता है ये ट्रांसफर्स एक्सिस है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस. ये रफली सा मैंने ड्रॉ कर दिया, पता नहीं आपको कुछ अच्छा लगेगा बुरा लगेगा. तो मिनिमम वैल्यूज इज 0. देखो कहाँ पे आ रहा है? x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x इक्वल टू -1. दोनों सूत्रों में y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है. तो मिनिमम वैल्यू इज 0 दोनों, और ये दोनों कहाँ आकर कर रहे हैं? एट x इक्वल टू 1 एंड -1. दैट्स इट.